So, sir, somebody sir was saying, director sir was saying, एक चाइना का स्टूडेंट होता है तो सुबह 8 बजे बैठते हैं तो रात को 8 बजे उठता है लैब से। हम तो 8 से 8 के बीच में 10 बार उठते हैं। लंच ब्रेक, टी ब्रेक, गपशप ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक, दिन भर ब्रेक्स में चलता है। तो ऐसा रिसर्च होता नहीं है। सो वी हैव टू क्रिएट a totally different environment where such rigorous work is happening. There we are finding results also. So I think that's how this whole thing happens. I am sorry I could not connect those 4 words, but broadly I think that is where this whole direction should be. Our institutions have to work very focused and very rigorous. Sir, Hello, we have sir. one last quick question. Hello, sir. This time from not the participant side, but from the coordinator side. I am Ajay Vinayak More. Jai Shri Ram, sir. So being an avid poem reader, the poem that I liked the most is like गिलगित से कारो पर्वत तक आजादी का पर्व मनाएंगे and we come want to learn across about it. किस दिन दूर नहीं भारत को पुनः अखंड बनाएंगे कैसे उल्लास मनाओ में थोड़ी दिन की मजबूरी है. Of course, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी. So as we all admire you, the question that I want to ask you, so what's take on your it? So how close and how far we are from it, from turning these lyrics into the mesmerizing or in the context romantic reality. You are apparently a poet, which I am not. Although I wrote many songs and all, not a poet, but I couldn't get you what you are trying to say. But essentially, I say that we have to focus on the present and next 25 years of the future. Look at Ram Janmabhoomi. Let us end with this, since we are talking about Ram Janmabhoomi. Now, there are 2 ways of looking at it. Go back into the last 500 years, discuss about how the struggle happened for 5 centuries, and finally we reached this stage. But you can only live in history in that. But can you think what will be the next 25 years based on what we have achieved at Ram Janmabhoomi? I give you one idea, think about it. It's not necessarily a management idea, but today, who is the most respected God form in the world? It is Buddha. You don't have to be a Buddhist to quote Buddha. You may be a great corporate giant, but when it comes to quoting, you will quote Buddha for peace. Buddha means peace, right? Second most used divine figure, most used, is Jesus for love. Can you think of Rama becoming something like that? दुनिया में कोई भी बोलेगा तो Rama as the representative of a particular value system. That should be the effort. That is Ram Raja. हम फिर हिस्ट्री में रहे, फिर कहे कि ऐसे सबक सिखाया, इसको ऐसा किया, वैसा किया, कर सकते हैं. मैंने कहा ना स्वांत सुखा, रात को अच्छा तो हो गए. But this today Vatican is not just a religious place; it's an economy. कर दे, आप भी इटली जाओगे, रोम जाओगे, ऑफिस वर्क पे जाओगे, तो एक बार वैटिकन देख के आएंगे. जाते हो कि नहीं जाते? Can I just become like that? Every foreigner coming to India should go to Ayodhya. There he will add to our GDP, our economy, but he will then understand the greatness of this civilization, this value system. That should be the future for Ayodhya. We have to build our future on that. अब हिस्ट्री में नहीं रहना. So कुछ जो achievements है, when you succeed, success should bring large-heartedness, magnanimity. And today we have to build that value system because that's a great value system, which the whole world wants today, needs today. Whether it wants or not is a different thing. Needs today. Big topic अभी आपको डिस्कस करना है. जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हम जब कर रहे हैं, तो वो किस्म जो इस समय स्वीप कर रहा है वेस्ट को, स्वीपिंग. I mean, today there are, in UK and all, in the school certificate, a child can write that I am a dog, and that will be recognized, and there will be a
a pooing place separately arranged for him, a dog pooing place. This is where the world is going. You have to urgently tell them what is actually a family. What is a human being? So, but our symbols should become that. Whether it is Ram Janmabhoomi or something else. But if we gloat over the whole struggle only, it's a great struggle. We are all very proud of it. But we should not get stuck there. That is what should be our very pragmatic and futuristic. That is Bharat all about. That is our civilization. That is what brought us here. That is what kept us. That is what kept us alive for centuries. You know, मोहम्मद इकबाल ने कहा ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां पे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन सही सारे जहां से अच्छा नहीं। तो हम सर्वाइव किया ना, कैसे किया? हम फ्यूचरिस्टिक थे। मैं एंड बाय सेइंग समथिंग इंटरेस्टिंग। यू नो, आज इंग्लिश यूज कर रहे हैं ना, कारण क्या है? हम कई चीजों को कन्वे करने में इंग्लिश में बहुत आसानी महसूस करते हैं। अब आप किसी गांव में जाके, भाई आपके गांव के अध्यक्ष जी है क्या, तो वो पूछे अध्यक्ष कौन है, पूछेगा नहीं नहीं यार प्रेसिडेंट सर, ओ प्रेसिडेंट सर है बोलेगा। प्रेसिडेंट भारतीय हो गया है। कारण क्या मालूम? हमने लैंग्वेज पर काम ही नहीं किया है। मैं तेलुगु से आता हूँ, आंध्र से आता हूँ। तेलुगु has the largest alphabet number of alphabets, 61 alphabets है तेलुगु का, largest है। अंग्रेजी के पास कितने हैं? 26। Which language should have had large number of words, vocabulary? जिसके पास 60 अक्षर है उसका वर्ड्स ज्यादा होते हैं ना, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। But look at our dictionaries, वही साइज है, पिछले 40 साल से वही साइज है। वही डिक्शनरी को रिप्रिंट कर रहे हैं, और हाफ ऑफ आवर लैंग्वेज डिक्शनरीज वर रिटन बाय द ब्रिटिशर्स। रिमेंबर, ब्राउन का डिक्शनरी आज भी डिक्शनरी माना जाता है। हम लैंग्वेज पर काम ही नहीं कर रहे। हम शब्द क्यों नहीं बनाते हैं? भाई इसका क्या शब्द है हमारे भाषा में? दूरवाणी, भाषा लगा भाई, कितना लोगों को मालूम है इसका नाम चिरवाणी है ना? बनाए ना हमने लैंग्वेज, शब्दकोश नहीं बनाया। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे? भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अंग्रेजों का था क्या? बनाया हमारे साइंटिस्ट ने, इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया। वर्ड इंग्लिश का क्यों मिला है उसको? क्योंकि उस लैंग्वेज में विशेषता है, अडॉप्ट कर लेता है, अप्रोप्रिएट कर लेता है, शब्दों को क्रिएट करता है, अनेक भाषाओं से शब्दों को ले लेता है। लेटर्स कम होने पर भी लैंग्वेज बड़ा बना के बैठ गया, दुनिया सब फॉलो कर रहा है। हम अक्षर ज्यादा है, हमारे पास विजडम है, हम काम नहीं करते, शब्द नहीं बनाते हैं। हमारे पास एक कार्यकर्ता होता था, वो रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम में काम करता था। उसको हम कहते थे कि आप स्वयं सेवक हो, भारतीय भाषा में परिचय देना। अब रेलवे सिग्नल टेलीकॉम को कैसे बताना है भारतीय भाषा में? रेलवे का 2 सेकंड कह दोगे, सिग्नल टेलीकॉम। उसने शब्द बनाया, उसने अपनी बुद्धि से बनाया। 2 सेकंड गमनागमन यातायात सूचना पट्टिका विभाग में काम करता हूं। ट्रांसलेशन सही है, बट एक शब्द बना नहीं सकते हम उसका। हम बनाते नहीं, सिग्नल यूज कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारा लेथार्जी। हमको इस पे करना है, इससे भाषा का वैभव बढ़ेगा। फिर भाषा, आप रशिया में देखिए, सब कुछ रशियन मिलेगा। वो तो न्यूटन के स्थान पर भी कोई रशियन होगा, वो जो ग्रेविटेशन थ्योरी भी किसी रशियन ने इन्वेंट किया, बताएंगे। इन एरियाज पे भी काम बहुत होना है, तो मैं सोचता हूँ कि उस दिशा में भी प्रयास हो। बट मैंने प्रारंभ में ही कहा, मैं बहुत ज्यादा इस विषय को जानकार नहीं हूँ भारतीय मैनेजमेंट के, इसलिए मैं जियो स्ट्रैटेजिक सिनेरियो को आपके सामने रखा। आप इंटेलिजेंट लोग हैं, उस पर विचार करेंगे, ऐसी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो हार्वर्ड में या अदर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने लगे तो तब वही एक कंडीशन था कि व्हेन यू सबमिट योर थीसिस
when you publish your paper, you have to do one paper in Japanese language and send it to our Tokyo University or Kyoto University, wherever. You have to send it back. But 1990s, all that knowledge that they acquired in that country was also available with Japan in Japanese. That is when that automobile revolution happened. First microchip was created by Sony company. आज जो सेमीकंडक्टर कहते हैं ना, उसकी शुरुआत सोनी ने किया था. सोनी 1986 में सोनी का मालिक वो होता था क्या है? वॉकमैन होता था. सोनी वॉकमैन लेके जर्मनी गया था. जर्मनी में हेलमेट कोल था. हेलमेट कोल को प्रेजेंट करता है तो वो कहता है देखो ट्रांसिशन सेल्समैन आ गया. That's how he was ridiculed. But in 1990, Ronald Reagan, President of America, went to Japan to enter into an agreement, automobile agreement. You know what was the agreement? Toyota cars हर साल 1 लाख से ज्यादा भेजना नहीं. ऐसे एग्रीमेंट होता है क्या? आप जाते हो तो मुझे और दो, ये पूछने के लिए जाते हैं ना. वो इसलिए गया कि भाई तुम्हारे टोयोटा आया तो हमारा सेल फोर्ड कार कोई नहीं खरीद रहा, तब आपका गाड़ी खरीद रहे, प्लीज कोटास इंपोज करने के लिए गया था. तो वह एक इंसिडेंट हुआ था. वो ही वाज देयर इन वन फैक्ट्री व्हिच वाज सेलिंग प्रोडक्ट्स टू अमेरिका. दे हैड देयर मैनुअल इन जापानीज. मैनुअल होता है ना प्रोडक्ट का, जापानीज में था. तो the Americans asked, यार you are selling this product to us, why don't you publish it in English? उन्होंने कहा कि देखो जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे लड़के आपके पास आए थे, इंग्लिश सीखे थे, आपके टेक्नोलॉजी लिए थे. आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, चाहे तो जापानीज सीखो ना आके.